Hello everyone, how are you all? Welcome to our IT class. This is your computer teacher Sumit Sadana. In the previous videos, we had discussed about our various tools, consolidate data, subtotals, right? Goal seek, multiple operations, scenarios. That means how to create what if scenario and all. And now in today's video we'll be discussing about a topic that is the use of solver tool. As you can already see on your screen, the use of solver tool. I have opened here OpenOffice Calc, that is spreadsheet application, right? And I have entered some data. As you can see, I have already inputted the data here. So let me do in front of you that I have taken one column, that is particulars, where I have taken some products: rice, fortune oil, sugar, lentils, salt, and the quantity of 1 kg each, and the price is varying from product to product. And here I have written amount 4000. Okay, I'll tell you afterwards why I have written 4000. So let me just calculate the total amount by putting a formula here. Equals to, if I want 1 kg rice, what would be the total amount if I am taking 1 kg rice, that cost 90 rupees, equals to 1 multiplied by 90. Okay, so 1 kg is equal to 90 rupees, and I'll be dragging it here. This I got, and here I'll put some function. So I'll select the range, bracket close, enters. A total of 400 is there. So solver tool, I'll explain to you that solver tool is a bit similar to goal seek, which we had done in the last video, right? But in the goal seek we were having one drawback, that is goal seek only affect, or it can change the values in one cell only, but in solver tool you can change to a number of cells, right? Means you can make changes to a number of cells first. Secondly, you can put conditions, you can limit the conditions, right, over those cells, right, with the different techniques, different conditions you can put over there. So let's do it. So the working is bit same for goal seek and for solver tool, but just added new facilities in solver tool is there. So let me show you around about what is solver tool. So I have clicked on 400 here because we have applied the formula here. So tools, I'll click on solver. Solver window has appeared, right? Here target cell. So target cell is basically where we have applied the formula, that is 400. So I have selected this. Next is optimize results to maximum, minimum, or value of. So just to tell you that why I have written 4000 here, I just want these are basically a total of 400 rupees. I am having 4000 rupees in my hand, and I want to adjust these 4000 in these 5 products. Means मतलब वो solver to automatically यहाँ पे calculate करे that मुझे राइस इतना चाहिए, इतना, और मुझे टोटल 4000 का बजट आ जाए, ठीक है, और मुझे बता देगी कि राइस के इतने केजी राइस आ गया, या फॉर्चून ऑयल के कितने लीटर्स हो गए, ठीक है, कितने लीटर पैकेट्स आ गए, वो शुगर कितने केजीज हैं, लेंटिल्स कितने केजीज हो गई, सॉल्ट कितने केजी पैकेट्स आएंगे मेरे पास, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो लेट्स डू इट। तो ऑप्टिमाइज रिजल्ट टू हमने मैक्सिमम और मिनिमम तब लिखना है जब व्हेन we are not sure about the exact amount. Now we are pretty much sure about 4000, that I'll be writing precisely 4000 here कि मुझे 4000 का ही बजट में ये सामान खरीदना है। ओके, सो नेक्स्ट, बाय चेंजिंग सेल्स। अब ऑब्वियसली अगर मैं 4000 का बजट करना चाहता हूँ तो मेरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, ना कि प्राइस, क्योंकि प्राइस तो फिक्स्ड है। ओके, तो मेरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो बाय चेंजिंग सेल्स मतलब किस सेल्स को चेंज करके आपकी वो 4000 रिजल्ट आपके पास लाए हम, तो दे आर आस्किंग दिस बाय चेंजिंग सेल्स। एंड टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ सॉल्वर टूल विंडो वी हैव लिमिटिंग कंडीशंस है। सो मैं ये डिलीट कर देता हूँ पहले आपके लिए, जस्ट टू
make you familiar with what is exactly conditions. सबसे पहली कंडीशन पहले राइस के लिए होगी क्वांटिटी पे, क्योंकि क्वांटिटी हमने बढ़ानी घटानी है। क्वांटिटी पे सेल रेफरेंस लिया मैंने, और यहाँ पे ऑपरेटर्स लगेंगे आपके लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, कि मुझे मतलब जो मेरी राइस की क्वांटिटी है वो हो जाए कोई 6 किलो से ज़्यादा ना हो, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन मैं लिख रहा हूँ, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ठीक है, मतलब 6 किलो से ज़्यादा ही हो। नेक्स्ट इज फॉर्चून ऑयल, उसकी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, ठीक है। शुगर, इधर पहले वहाँ जाएगा, इधर क्लिक करेंगे, फॉर्चून की 9, ठीक है, शुगर 3, 4, 5, या पहले राइस फिर फॉर्चून फिर शुगर। नाउ इज फॉर लेंटिल्स, कि मेरी लेंटिल्स है वो लेस देन 5 ही हो, नेक्स्ट इज योर सॉल्ट जो है आपका इक्वल टू 10 हो जाए, तो आई बी क्लिकिंग सॉल्व हियर। तो यहाँ देखो ये सॉल्व है, क्लियर। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा था, इस कंडीशन में सबसे पहले मैं ये हमें बता रहा है सॉल्विंग सक्सेसफुल फिनिश्ड, रिजल्ट आपका 4000 एग्जैक्ट आ गया। डू यू वांट टू कीप द रिजल्ट और डू यू वांट टू रीस्टोर प्रीवियस वैल्यूज। अब जैसे यहाँ पे ये सॉल्विंग प्रोसेस में आ गई, तो यहाँ पे उसने चेंजेस आपको दिखा दिए कि राइस है वो 6 किलो है, ठीक है, जो फॉर्चून ऑयल है वो 17.5 लीटर है, ठीक है, द शुगर इज ऑफ 9 kg, लेंटिल्स 5 kg, सॉल्ट 10, क्योंकि हमने सॉल्ट इक्वल्स टू 10 किया था, जो लेंटिल्स है वो लेस देन इक्वल टू 5 किए थे, ध्यान देना, ठीक है, मतलब लेस देन और इक्वल टू उसने 5 ले लिया। शुगर उसने लेस देन और इक्वल टू 9 किया था मैंने, तो उसने 9 कंसिडर कर लिया। अभी यहाँ पे जो B4 है दैट इज फॉर्चून ऑयल, वो उसने ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हमने अप्लाई किया था कंडीशन पे, तो दैट मीन्स कि 5 या 5 से ज्यादा हो, इससे कम ना हो, ठीक है। और उसने बाकी कंडीशंस को जस्ट टू मेक इट इन इट्स कंसिडरेशन, बाकियों को लेके उसने ये 17.5 लीटर हमें दिखा दिया, बाकियों को उसने एग्जैक्ट मैच कर दिया। तो मैं कीप रिजल्ट कर रहा हूँ। सो ये 4000 और ये 4000 मैच करके ये हमारा टारगेट था कि हमें इस बजट में खरीदना था सारा कुछ, एंड वी गॉट आवर रिजल्ट। तो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ सॉल्वर टूल हियर। इट्स वेरी सिंपल लाइक अ गोल सीक, बट गोल सीक में एक ही चीज थी दैट यू कैन चेंज ओनली इन वन सेल, एनी वैल्यू यू वांट टू चेंज, ठीक है, तो वो उसमें कर सकते थे, ठीक है। तो आप इसमें सिंपल इंटरेस्ट की एग्जांपल भी ले सकते हो। लेट मी शो यू, आप उसको करके देखना घर पे। सो दिस इज प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI, टाइम एंड SI, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि 5000 यहाँ पे ले लिया आपने, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 टाइम 3, तो हमें फॉर्मूला पता है दैट इज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। सो प्रिंसिपल इज 5000 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100, 6। और ये बेसिकली अगर आपने सॉल्वर टूल यहाँ पे एक पे अभी अप्लाई कर दिया है, तो सेम वे यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, आपको दूसरी शीट पे करना पड़ेगा काम इसका, ठीक है, क्योंकि वो वापस में वही रिजल्ट शो करता रहता है, ठीक है। ये देखो 4000 है, मैंने 900 किया, वो दोबारा सेव हो गया था बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज इट, ये आपका होमवर्क है, आप घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। स्टार्टिंग में आपके पास 720 आंसर आएगा इसका, फिर उसके बाद मुझे फीडबैक जरूर देना। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी जस्ट आस्क मी। सो दिस इज द होल वर्किंग ऑफ सॉल्वर टूल, वेरी सिंपल। आई होप you like it. Okay, you understood it well. So okay, this is it for this video. We'll be continuing in the next video. Okay, thank you.